کہکشاں ندیم صاحبہ، آپ کس طرح تعریف کریں گی صحت مند زندگی کی؟ بالکل ایگزیکٹلی جو یہ کہہ رہے ہیں یہی اسی کو میں بولوں گی کہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کو ہر چیز لائف سٹائل کو اپنے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کھا رہے ہیں، کس طرح آپ سو رہے ہیں، کس طرح آپ اسٹریس لیول کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کے صرف یوگا اور صرف باڈی بلڈنگ سے کچھ نہیں ہوگا. اٹس اے پیکج، پورا پیکج ڈیل ہے جو آپ کو لے کے لائف ٹائم چلنا ہوگا. تو دیر از نو کوئک فکس. آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ لائف ٹائم ہی کرنا ہے جب تک آپ سروائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہکشاں صاحبہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اتنی مصروف ترین زندگی ہے، اس میں ورزش کتنی ضروری ہے اور وہ کیسے اس کا وقت نکالنا ممکن ہو سکتا ہے؟ وہی جو بات عامر نے کی بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارا فزیکل ایگزرشن زیرو پہ چلی گئی بیکاز آف کمپیوٹر اینڈ موبائل فونز اینڈ ساری ایکٹیویٹیز بالکل بیچاری کنفائنڈ ہو کے فزیکل کچھ نہیں رہا ہماری لائف میں. تو واک جو کہ ایک نیچرل فینومینا تھی 20 ایئرز اگو 50 ایئرز اگو، اب اس کو ایکسرسائز کا نام دے دیا گیا. واک تو ایک جنرل چیز ہے، ہر انسان کو کرنی ہی کرنی ہے ان آرڈر ٹو سروائیو. واک ایکسرسائز نہیں ہے، آپ کو واک تو کرنی ہے بیکاز آپ ہیلدی رہ سکیں. پھر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ٹو ہیلتھ آف دا جوائنٹس، ہیلتھ آف دا مائنڈ اور آپ کے جتنے بھی آرگنز وغیرہ ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. تو پلیز واک کو ایکسرسائز سے مکس نہ کریں. واک ضرور کریں لیکن واک ایکسرسائز نہیں ہے. پھر چوز یور کائنڈ آف ایکسرسائز جو آپ کو پسند ہے. آپ کوئی بھی کلاسز لیں، اس میں لرن کریں. آپ ایروبک کریں یا آپ یوگا کریں، پلاٹیز کریں. اس کے بعد اگر آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہے تو پھر آپ چینج کر دیں، پھر کچھ اور کریں. مطلب یہ ہے اب تو یہ شکر ہے کہ ہمارے پاس بہت چوائسیز ہے. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو وی ہیڈ نو چوائسیز. 16 ایئرز اگو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یوگا کیسے کروں. میں بکس لے کے کر رہی ہوتی تھی. پھر کوئی میں نے کورسز کیے، پھر خود ہی سے اپنے آپ کو سکھایا. تو جو میں نے 2 سال میں سیکھا وہ میرے اسٹوڈنٹ 4 منتھس میں کر رہے ہیں بیکاز ایکسپرٹیز. عورتیں گھر بیٹھی ہیں وہ کیوں گھر بیٹھی ہوئی ہیں؟ ٹرائی ٹو کم آؤٹ اینڈ لرن سم تھنگ. اپنی لائف میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں، باہر نکلیں، کہیں نہ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں سے آپ کو اسکل سیکھ سکیں. یوگا ہم کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ اوپر سے آنا ہوگا. جب تک ہم دماغ میں یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے، اس کے بینیفٹس نہیں. کوئی بھی چیز آپ لرن کرتے ہیں تو آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا اس میں فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. ٹھیک ہے. اب یوگا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو یوگا ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے 90s تک بھی ٹیچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اور کوئی ٹیچر بتا دیں، کوئی میتھ کا ٹیچر بتا دیں، کوئی اسکالرس بتا دیں یا کوئی ٹیچر بتا دیں جو اس ایج تک جا کے آپ کا مینٹل انٹلیکٹ، آپ کا انٹلیکٹ کتنا ہائی ہو جاتا ہے. اشارہ ادھر ہے. ہاں، تو آپ دیکھیں کوئی بھی ایکسپرٹس ہیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد یو ہیو ٹو گیو اپ یور اسپورٹس. آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، آپ 60s میں آ گئے، آپ بس ہو جاتے ہیں، آپ کے نیز دی اینڈ آف اسٹوری. ایک غلط کانسیپٹ یہ ہے ہمارے یہاں یوگا کا کہ یوگا یوگیز کے لیے بس وہ یوگا کرنے والے ہیں. اصل میں یوگا ان کے لیے زیادہ ہے جو اپنی باڈی کو زیادہ ایکسیسو یوز کرتے ہیں، لائک عامر، لائک ادر پیپل، لائک ڈوئنگ ادر ایکسرسائزز. ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یوگا سے مینٹین رکھیں. یعنی کہ آپ نے بہت زیادہ اوور ایکسرسائز کی، اس کے بعد آپ نے اس کو ریلیکس بھی کرنا ہے تو آپ کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے اور ہم اس سے آپ کا اسٹرینتھ بڑھتی ہے. اور جو پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کھیل رہے ہیں، لائک 10 ایئرز آپ نے فٹ بال کھیلنا ہے تو آپ 20 ایئرز تک کھیل سکتے ہیں اگر آپ یوگا سائڈ بائی سائڈ کرتے رہیں گے. تو یوگا بیسکلی فار ایوری ون ہو از آلریڈی ڈوئنگ ایکسرسائز. صحیح. پہلا یہ کانسیپٹ کلیئر لوگوں کو نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یوگا صرف یہ ایسے بیٹھ گئے اور کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. آج کل جو ماڈرن یوگا ہے کمپلیٹلی ابھی انہوں نے بھی یہی کہا بہت مطلب اٹس سو ٹف کہ مجھے اگر ریزلٹ مل رہا ہے پیشنس نہیں ہے نا، مین چیز ہے پیشنس نہیں ہے اور اس میں چاہیے پیشنس آپ کو. تو اور ٹیوٹوریلس دیکھیں، ویب پہ جائیں، اپنی مرضی کے مطلب ایب ایکسرسائز دیکھیں، تھوڑا بہت گھر پہ پریکٹس کریں، تھوڑا بہت کیا دیکھ کے یہ سیڈیز ملتی ہیں جو تو وہ کچھ انیشیٹ آپ کر سکتے ہیں نا. ہوتا نہیں ہے، دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ گئے یوگا کلاس آپ نے لی اور آپ کا کوئی ریزلٹ نہیں ملا تو آپ نے کہا جی یوگا بیکار ہے. اب یوگا تھوڑی 5000 ایئرس سے اگر لوگ کر رہے ہیں تو اس میں فائدے ہی ہوں گے نا. آپ یوگا کو بلیم نہیں کریں. آپ کو ٹیچر اچھا نہیں ملا یا آپ کو کلاس اچھی نہیں ملی یا اکارڈنگ ٹو یور ایج، سائز، باڈی ویٹ وہ کلاس نہیں تھی. آپ کو یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ اینڈ فائنڈ دا کلاس وچ سوٹس یور باڈی. یہ آپ کا کام ہے کہ اپنا ایک تو پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ یو آر دا اونلی ون کین ہیلپ یور سیلف. صحیح. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ لوگ کہتے ہیں یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ چیلنج مجھے یوں بنا دے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے اپنے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا. ایکچولی یو آر پریپیئرنگ یور باڈی ٹو سلیپ. تو جب آپ اپنے آرگنس کو ریسٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، اپنے مائنڈ کو تو آپ کی اسکریننگ کم ہونی چاہیے، آپ کی انٹیک کم ہونی چاہیے تاکہ باڈی کو آپ مزید کام نہ دیں کہ وہ گرائنڈ کرنے میں لگی اور آپ سو ہی نہیں پا رہے، اب برننگ ہو رہی ہے، یو کانٹ سلیپ. اچھا، تو
कहकशां साहिबा, आप ये बताइए कि वर्जिश जिसके जिक्र कर रहे थे हमारे कॉलर, ये किस हद तक जरूरी है और इससे क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं हमारी जिंदगी में? इन माई लिटिल इंटेलेक्ट, जो मेरा अभी तक जो कुछ मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वर्जिश और ये सारी चीज़ें आप बातें करें, स्ट्रेस लेवल जो हमें इस ज़माने में मिल रहा है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्ट्रेस में होते हैं या आप फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरजॉयड हैं या आप एंग्री हैं तो आपके इमोशंस आपको कभी भी सही थिंक करने का मौका ही नहीं देते। तो हम इतना बिजी होते हैं, इतना स्ट्रेस में होते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है हम उसको नहीं कर पाते, इसलिए कि उसको प्रैक्टिकली कुछ हर एक को आप देखेंगे मिलेंगे, मुझे योगा करना है, मुझे योगा करना है, मुझे योगा, लेकिन करता कोई भी नहीं है। तो हर चीज हवा में ही रह जाती है। आप करते रहे, मैं आपको पॉज उनको पॉज कर देते पॉज कर देते तो आप जब आपकी एबिलिटीज थिंक करने की जब स्ट्रांग होंगी, जब आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे, जब आप पीस में आएंगे, जब आप रिलैक्स होंगे, फिर आप रियलाइज करेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये मुझे जरूर करना और ये बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपकी एबिलिटीज ऑफ थिंकिंग हमारे से चली गई बिकॉज ऑफ इमोशंस। जो हमारे इमोशंस हैं वो हमें पीछे करे जा रहे हैं बिकॉज हमें बस खाने की पड़ी है, घूमने की पड़ी है, कपड़े बनाने की पड़ी है, और डॉक्टर्स के यहाँ डॉक्टर है ना, दवाई दे देंगे हम सही हो जाएंगे, हमें क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की। बात है ये एक इजी दवाइयों पे ज्यादा भरोसा कर लिया हमने और दो टैबलेट खाए आप सेट हो गए, मेहनत नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी। अब बिल्कुल हमें प्राइमरी लेवल पे सिखानी होगी बच्चों को, क्योंकि अब जो लोग बड़े हो गए उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि एक्सरसाइज भी एक जरूरी चीज है या अपने आप को मेंटली किस तरह से रिलैक्स करना है, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो आपको हेल्दी हो माइंड के लिए, फिर बॉडी के लिए भी हेल्दी हो। हमने इसको स्कूल लेवल पे लाके बच्चों को जिस तरह हम और चीजें सिखाते हैं ना, मैनर्स सिखा रहे हैं, आप एटिकेट सिखा रहे हैं, आप ये भी सिखाएं कि लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज। हम अपने बच्चियों को कभी नहीं कहते बेटा ससुराल का ख्याल रखना, बच्चों का, मियाँ का, अपना भी ख्याल रखना, 1 घंटा अपने लिए भी निकाल लेना, ये हम कभी एडवाइस नहीं करते। इसी वजह से हमारी औरतें स्पेशली बेचारी घर पे रह जाती हैं और उन्हीं को हेल्थ इश्यूज होते हैं और सारे पैसे आपके डाइवर्ट उस तरफ हो रहे होते हैं। वही पैसे आप जरा इधर लगा दें और प्रिकॉशनरी कुछ कर लें ऐसा कि आप उस लेवल तक ना जाएं। साथ साथ टाइमिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जैसा कि आपने पहले कहा, जितना हम अर्ली डे टाइम में जितना कंज्यूम कर सकते हैं फॉर एनर्जी, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप जो भी अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग द डे, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा, तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि लंच लोग छोड़ देते हैं और डिनर पे सारा जोर होता है। जी। तो इसका वाइस टोटली ऑपोजिट होना चाहिए कि आप लंच हैवी करें, और क्योंकि डिनर में ये होता है ना कि हस्बैंड आ रहे हैं तो मेन थिंग आपकी डिनर बन गया आजकल लोगों का, और वो भी लेट डिनर 10 के बाद 9 के बाद आप खा रहे हैं, दिस इज वेरी बैड फॉर कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी। तो आपका टाइमिंग सबसे ज्यादा मैटर करता है, इंटेक से ज्यादा, इंटेक भी है ऑफ कोर्स। तो अगर रात अर्ली खाएं, अगर सोना सुबह 5 बजे हो तो फिर तो लेट डिनर ही सूट करता है। फिर तो आपका अल्लाह हाफिज है, दुआ, फिर आपके लिए दुआ है। पानी की भी जो बेस्ट टाइमिंग्स है वो 5 to 7 इन द मॉर्निंग है। जिस तरह आप रात की तरफ जाएं पानी कम कर दें, बिकॉज अगर आपका ब्लैडर फुल है और आपको मिडिल ऑफ द नाइट बाथरूम जाना है तो इट मीन्स योर किडनीज आर नॉट रेस्टिंग, इट्स टाइम फॉर किडनीज टू रेस्ट। आपको पूरी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि बॉडी असल में होती क्या है, किस टाइम कौन से आपके 12 ऑर्गन टाइमली काम कर रहे हैं, आपको फैसिलिटेट करें। जब आपकी इंटेस्टाइन का टाइम है, जब आपका बाथरूम जाने का टाइम है, वो बेस्ट टाइम है, उस वक्त आप 5 ग्लास 6 ग्लास पानी पी जाएं, वो आपको फायदा करेगा। वो 5 ग्लास आप रात में पी जाएं आपको नुकसान कर जाएगा। तो टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगा के हिसाब से हम डाइट प्लान नहीं देते, हम सजेशंस देते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट, बिकॉज आप अकॉर्डिंग टू योर हाइट, योर साइज, योर वेट, योर एज, योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्लूडिंग योर वर्कआउट, कितना आप वर्कआउट कर रहे हैं। कहकशां साहिबा, ये बताइए कि हमारी जो खाने की रूटीन है वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो वक्त बताएं कि वक्त क्या होना चाहिए खाने का। अभी आप कह रहे हैं कि हम सुबह 5 बजे सोते हैं और फिर हमें नहीं, मैं नहीं सोता, जनरली अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल कि आपका क्या लाइफ स्टाइल। अगर आपकी नाइट ड्यूटीज हैं तो ऑफकोर्स आप वो फॉलो नहीं कर सकते। जो एक जनरली ये है कि जो नेचर के साथ अर्ली राइजिंग एंड अर्ली टू बेड, वो वाली बातें हैं, लेकिन इतना ज्यादा ईजी नहीं आजकल इसको मैनेज करना, क्योंकि कंप्यूटर है, लाइट्स हैं, हम अंधेरा नहीं होता और हम सो नहीं सकते पंछियों की तरह जाके, हर एक को थोड़ा फेसबुक देखना है, थोड़ा कंप्यूटर पे जाना है। तो हम एट द मोस्ट जो कर सकते हैं वो करते हैं। एक बड़ी अच्छी बुक मैं आपको बताती हूँ, डैन हैरिस की बुक है, राइटर डैन हैरिस, उसने बुक लिखी, उसका नाम है 10% हैप्पियर। ओके, आप समझ गए कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो
हर चीज में अगर हम यही उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि दे विल नेवर बी अ पॉइंट इन योर लाइफ जब हर चीज परफेक्ट होगी, ये भी सही, वो बस पॉजिटिविटी, नथिंग बैड और नथिंग यू नो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता लाइफ में, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज हम हेवन में नहीं, ये हेवन का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ बुराई नहीं होगी, बुरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, रिलैक्स होंगे। लाइफ में यू विल नेवर गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं होगा, तो आपको यू हैव टू डील विद इट एंड लिव विद इट। तो उसके हिसाब से अगर आप 10% भी कुछ करते हैं तो यू जस्ट ट्राई टू मेक 10% हैप्पियर योर सेल्फ। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जाते हैं, फिर आप लर्न कर लेते हैं कि हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो हम स्टार्ट स्क्रैच से करते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड लेट नाइट, ट्राई टू अवॉइड, चले आपने 2 नाइट्स आपने चले फ्रेंड्स के साथ हैं या आप सैटरडे संडे पार्टी कर रहे हैं, आप 5 नाइट्स तो उसको मैनेज करें ना, तो 2 नाइट्स तो करें, 2 मील्स तो मैनेज करें। थोड़ा थोड़ा करके हम उस चीज को आगे लेके जाते हैं और अपने आप से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें कि 1 महीने में मैं चेंज हो जाऊं, 1 ईयर में मैं चेंज हो जाऊं। आप उसको लाइफस्टाइल बनाएं। इसीलिए डाइट की आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप वही खा रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, फिर थोड़ी देर में आप ब्रेकफास्ट में ये ले रहे हैं। आपका एक रूटीन बन जाता है। जब रूटीन होता है तो एफर्टलेस चीजें आप कर रहे होते हैं, बट दिस इज वेरी गुड फॉर योर लाइफस्टाइल। तो आप रूटीन बना लेते हैं, यू मेक इट हैबिट। हैबिट ऐसी चीज है जो आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं अपने लाइफ में। हैबिट क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ एक्शन। यू हैव डन समथिंग सो मेनी टाइम्स इन योर लाइफ ओवर एंड ओवर अगेन कि इट बिकम योर हैबिट। फिर आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करनी, ऑटोमेटिक हो रहा है। सही है, जैसे आप ड्राइविंग, वो है ना, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। आप अच्छी हैबिट को डेवलप करें, क्योंकि जो कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हैं उसके पीछे आप ही हैं। अगर कुछ आप अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, हर चीज के पीछे आप ही हैं जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्टिव हैं। तो आप अपने आप को एक्टिव करें इस चीज के लिए कि हमने अच्छा होना है। तो उसके बाद आपकी स्टेप बाय स्टेप आप लेते चले जाएंगे। बहुत ज्यादा देखें, जो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, जैसे योगा में भी इंजरीज बहुत होती हैं, उसका रीजन ये होता है इफ यू ट्राइंग टू अचीव टू मच इन टू लिटिल टाइम। ठीक है, आप कह रहे हैं जी मैं ऐसा हो जाऊं जो 5 साल से कर रहा है, मैं जो 5 महीने हुए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है और फिर आप डिसहार्ट भी हो जाते हैं और फिर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको विद पेशेंस हर चीज करनी होती है। बिल्कुल। क्या किशा साहिबा, एक अभी कॉलर हमारे साथ थे, उन्होंने खातून उन्होंने ये कहा कि बच्चों में आजकल हड्डियों के दर्द की बड़ी शिकायत सामने आ रही है। अब वो डाइट का तो आपने बता ही दिया, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि जब पेन शुरू होता है तो यूजुअली बड़ों में भी ये मसला है, बच्चों में भी, वी स्टॉप यूजिंग दैट एरिया ऑफ द बॉडी। अगर आपके नीज में पेन है तो आप नीचे बैठना छोड़ देते हैं और यहीं से आपका ड्रॉप डाउन शुरू हो जाता है। तो योगा में हम कहते हैं कि आप थोड़ा सपोर्ट से बैठें लेकिन जॉइंट्स को एक्टिव रखें। तो जब पेन होता है तो आप अवॉइड करते हैं एक्टिविटीज करना क्योंकि पेन हो रहा है, लेकिन हमारी सजेशन ये होती है थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करें, उससे आप सर्वाइव करेंगे और उस पेन से निकल आएंगे। और जो लोग बहुत अरसे तक एक्सरसाइज नहीं करे, जो बैक पेन वाले मेरे पास बहुत आते हैं, नीज के प्रॉब्लम, उनकी बैक किस तरह से, उनको हम पहले तो सिखाते हैं कि आप ये सोचें वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा किस तरह आपका गैप उसमें जरूरी है। अब बाय टू मच सिटिंग एंड ड्राइविंग हम काइंड ऑफ डक्ट इन हो जाते हैं, हम लोग ऐसे कंप्रेस हो रहे हैं विद टाइम नेचुरली। और जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं हम उसमें बॉडी में स्पेसेस क्रिएट करते हैं जो कि नेचुरल मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पहले दरख्तों पे लटक रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तरह का लाइफस्टाइल था ना, बच्चे खेल रहे हैं ट्रीज पे, अभी कोई ये वाली आपकी एक्टिव बोन्स ही खत्म हो गई, बैठे हुए हैं। तो आपने उनको पुश करना है एक्सरसाइज और आपने अपने आप को पुश करना है। और जो एरियाज आपके स्टिफ हो गए जिनमें एनर्जी नहीं जा रही उसको आपने थोड़ा सा यूज, जैसे आप देखें पुराने दरवाजे आप खोलते हैं तो क्रैंक आवाज तो आएगी, तो वो वाली साउंड आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वो बर्दाश्त करना होगा। फिर आप एक स्टेज पे आएंगे जब आपके पेन खत्म हो जाएंगे। सही 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 ट्रांजिशंस को आपको समझना होगा इस चीज। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। कैक्शन साहिबा, आप मुल्क से बाहर टीचिंग करती हैं ठीक है योगा के हवाले से, तो पाकिस्तान में भी क्या आप ट्रेन करती हैं? अभी तो मैंने इट्स इन पाइपलाइन, मे बी सून इंशाल्लाह। बाकी कांटेक्ट की आप कोई बात कर रहे थे तो मेरा पेज है योगी कहकशां के नाम से ही पेज है, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं और कोई अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। दूसरा प्रीनेटल योगा एक मैं बता रही थी आपको कि जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उसके लिए प्रीनेटल योगा होता है, आप उसकी भी ट्यूटोरियल देखें। और प्रेगनेंसी में भी आप योगा कर सकते हैं, पोस्ट प्रीनेटल होता है, आप आफ्टर प्रेगनेंसी वो चीजें अगर आप करते हैं तो न सिर्फ आपकी डिलीवरी और ये चीजें बहुत ईजी आपके लिए हो जाती है बल्कि आप अपनी फिजिकली फिट रहते हैं। ओके ओके, ये भी बाद में वेट बढ़ने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया कैक्शन साहिबा और सहमा साहिबा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू रही है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा और यकीनन जो मेरे
दोस्त हैं नाजरीन, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने सीखा, बहुत सीखा। अभी सिखाना है, मैंने सीखा। अभी आपने कुछ नहीं सीखा। ओके, तो हमारे शो का वक्त जो है वो बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और हमारे मेहमानों की बात उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग के आप अपनी जिंदगी में अपने लिए देखें, सारा कुछ हम करते हैं माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए वक्त निकालते हैं। क्या हम अपने लिए वक्त निकालते हैं? बस इसको सोचिएगा और अपने लिए जो है ना आधा घंटा 1 घंटा जरूर वक्त निकालें, एक्सरसाइज करें और अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतरीन बनाएं। फाहिम अब्बास और फुरकान बॉबी को इजाजत दीजिए, आप दोस्तों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद जिंदाबाद।